Good morning, students. You will see here, this is two playing cards. Playing cards, these are the part of the one is king and one is queen. I'm not going to here discuss about the types of playing cards. We are going just discuss about its shape. What you find if you put one on the others, the second one is not seen from above, and the same thing if you put like this one, you will find that again the first one is not seen by. So in that case we say that these two cards coincides to each other, so they are called congruent. I am here drawing some, cutting some part. Let it be. I just folded it. This is a paper. I folded it and I'm trying to cut one cut, one more cut, and then finally another cut. Clear? So again, if I am not going to, if I had not shown you that this is a folded paper, so what you will find it that it is a triangle. But here there is another triangle before it, just behind it, and but we cannot see now. Do you see then there is two triangles? No, but here is another. So here these are the two triangles, but if you put one on the other, one is going to be out of the scene. So again we say that these two figures are said to be congruent. In the same case, if you draw two circles of the same radii, दोनों अलग अलग है, ठीक है, लेकिन जब दोनों को एक दूसरे पर मैं ओवरलैप कराऊंगा स्लाइड करा के, सपोज कर लो दो बैंगल्स हैं एक ही साइज के, दोनों एकदम बिल्कुल हूबहू एक दिखेंगे. आपने अपना एक फोटोग्राफ निकलवाया, आप जाते हो स्टूडियो को, वो बोलता है भाई कितने 3 कराने हैं, 6 कराने हैं. हम लोग क्या देखते हैं, वी जस्ट लुक अबाउट द मनी. इफ यू गेट 6 out of 30 and 3 of only for 3 the photographer take 20, so we will prefer to snatch 6 copies of the same photograph, but all the copies are look like identical. So part of the photographs again congruent. What do you say? They are congruent. Here you see these are the two palms. If we put here one to other, what you see? Generally the palm of a person be identical. Actually it is not. If you are lefty, then your left hand is more stronger than the right hand, and there is some dissimilarity in the figure. You can see here, you will find that between these lines, ये lines यहाँ पर हैं, you will find ये जो coincide किया, बट ऊपर वाला जो है coincide नहीं कर रहा है, और सबसे ऊपर वाली जो लाइन है यहाँ पर वाली, ये लाइन ये भी coincide नहीं कर रही है. मतलब एक ही आदमी के दो फिंगर, दोनों हाथ के जो फिंगर है, मान लो ये जो है फर्स्ट फिंगर है, आइडेंटिकल नहीं माना लेकिन जाता है कि ये आइडेंटिकल है. दो जुड़वा बिल्कुल हूबहू, क्लोन, they are said to be congruent. But we are discussing about congruency of figure, two-dimensional figure. Here all the figure, whether you are discussing about this, if it is drawn on the paper it is called two-dimensional. But if you think that this one, yes, practically we are going to take it as a two-dimensional, but it has some thickness, so it becomes three-dimensional. But that is not the part of the syllabus today now. So this is taken as a rectangle, this is another rectangle, and they overlap each other, they coincide with each other, so these two figures are said to be congruent. Similarly, these two figures are said to be congruent because they coincide each other. One is coincide with another, so here
we have two triangles, so these two triangles are said to be congruent. Two line segments are said to be congruent if they are of the same length. Two circles are said to be congruent if they are of the same radii. But a rectangle and a triangle cannot be congruent. किसी भी हालत में अगर आप एक रेक्टेंगल लेते हो, जैसे मैंने एक रेक्टेंगल यहाँ पर लिया, अब चाहे जितना भी बड़ा आप ले लो, मान लो आपने बड़ा सा ही ले लिया, एक रेक्टेंगल बहुत बड़ा सा ले लिया, तो या इस ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं इस कार्ड को रख दूँ, ट्रायंगल दिखना बंद हो गया. कैन आई से दैट दे आर congruent? No, because if you overlap that, we find that triangle is not going to be cover the whole card. So these two figures cannot be congruent. And here similar, they are not of the same shape. ये रेक्टेंगल है और ये ट्रायंगल है, तो दो अलग अलग शेप के फिगर तो कभी भी कॉन्ग्रुएंट नहीं हो सकते. तो कॉन्ग्रुएंसी होने के लिए, कॉन्ग्रुएंट फिगर होने के लिए पहले फिगर्स का सेम शेप का होना ज़रूरी है. सेम शेप का, शेप का मतलब समझ रहे हो? अगर हमने सर्किल की बात करी है तो दूसरा भी सर्किल होना चाहिए, अगर रेक्टेंगल बात करी है तो दूसरा भी रेक्टेंगल ही होना चाहिए. इफ़ यू डिस्कस अबाउट स्क्वायर्स, देन अदर फिगर इज ऑल्सो स्क्वायर. नाउ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट गोइंग टू बी congruent टू अनदर क्वाड्रिलेटरल. क्वाड्रिलेटरल ऑफ अ डिफरेंट टाइप. सो रेक्टेंगल मीन्स, जनरली रेक्टेंगल को क्या कहते हैं, इसका लेंथ और ब्रेथ जो है वो अलग अलग साइज का होता है. और स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर के ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. ऑल फोर साइड्स आर इक्वल. तो अगेन यू डिस्कस अबाउट स्क्वायर एंड रेक्टेंगल, दे कैन नॉट बी congruent. सो फर्स्ट कंडीशन इज द figures must be of the same shape, and the other part same size, also same size. What is the meaning of size here? It is in different case you will find the difference. They say in the case of line segment, size is its length. In the case of line segments, the size is its length, their length. So if two line segments are of the same length, if two line segments are of the same length, so they are said to be congruent. They are said to be congruent. Two circles are said to be congruent if, what is the size here? Its radius. So their radii are equal, then the circles are said to be congruent. Two squares are said to be congruent if they are of the same size. What is the condition of square? स्क्वायर के सारे साइड बराबर होते हैं, स्क्वायर के ईच एंगल 90 डिग्री होता है. तो स्क्वायर का जो शेप है वो एक तरह से ऑल द फोर दे आर रेक्टेंगल, बट कंडीशन इज इट्स ऑल साइड्स आर इक्वल. ईच एंगल इज 90 डिग्री. रेक्टेंगल है तो 90 डिग्री होना ही होना है. सो टू स्क्वायर्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट ओनली इफ देयर साइड्स आर इक्वल. सो हेयर साइड उसका वो साइड है. ठीक है. नाउ in order to discuss another thing, first of all, in this class 9 syllabus, we have to discuss only congruence of triangle, not all the figures. We have to discuss about the congruence of triangles. So when two triangles are said to be, अब triangles है तो same shape हो गया, triangles है तो same shape हो गया. So congruence of triangles. So two triangles are congruent if, पहले हम लोग फिगर की बात कर लेते हैं. Two figures are congruent if they are of same shape and of same size. तो जब ट्रायंगल की बात हम लोग करेंगे, ट्रायंगल की जब बात करेंगे तो दे सिंस बोथ आर ट्रायंगल्स, सो दे आर ऑफ द सेम शेप. ट्रायंगल्स आर ऑफ सेम शेप. तो यहाँ तो पहला कंडीशन ऑटोमेटिक फुलफिल हो गया क्योंकि दोनों के दोनों ट्रायंगल हैं, शेप उनका ट्रायंगुलर है. ओके. नाउ सेम साइज.
अब हमें यहाँ पर सोचना होगा कि ट्रायंगल्स के एक्चुअली साइज होते क्या हैं। तो नाउ ए ट्रायंगल हैज़ हाउ मेनी पार्ट्स? डू यू नो एनी वन ऑफ यू? अगर आप जानते हो तो वीडियो देख करके बताना कि सर हम जानते हैं कि ट्रायंगल के कितने पार्ट होते हैं। मेरे बताने के बाद नहीं, मैं इसके बाद अभी थोड़ी देर में बता दूंगा, तुरंत सेकंड्स में बता दूंगा। लेकिन आप ऑनेस्टली जवाब मुझे देना कि सर यस आई नो द टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ए ट्रायंगल। अगर नहीं जानते होगे तो फिर कह देना कि सर ये तुम मैं भूल गया था। जानते तो जरूर होगे, बताया गया होगा। सो अ ट्रायंगल हैज एक्चुअली 6 पार्ट्स, यानी 6 साइड्स, 3 sides and 3 angles. Vertices are not the part. जो पॉइंट्स हैं, कॉर्नर है, उसको पार्ट्स नहीं कहते हैं। ट्रायंगल बना तो इसके 3 साइड हो गए और उसी के साथ इसका 3 एंगल हो गया, ठीक है। सो अ ट्रायंगल हैव 6 पार्ट्स, 3 sides and 3 angles. So if 2 triangles are to be congruent, then what? They are of the same shape, okay, but sizes का means अगर हमने अभी यहाँ पर ये कहा कि ये जो ट्रायंगल था, ये जो हमने लिया हुआ था एग्जाम्पल के तौर पे, दिस वन, ये हमने लिया, तो क्या था यहाँ पर देखिए ध्यान से, एक साइड, फिर ये इसका दूसरा साइड और ये तीसरा साइड भी इक्वल। एंगल्स जो इसमें ये एंगल है, इसमें भी वही एंगल है, यहाँ जो एंगल है वो यहाँ एंगल है, जो यहाँ एंगल है इस कॉर्नर पे वो भी यहाँ एंगल है। सो दे आर ऑफ द सेम इफ देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग दे आर इक्विएंगुलर कह सकते हो आप। करस्पॉन्डिंग क्या के दे आर इक्विएंगुलर। इक्विएंगुलर का मतलब एक ट्रायंगल के जो तीनों एंगल्स के मेजरमेंट है, सपोज करो एक ट्रायंगल में 30, 60 और 90 डिग्री है, तो दूसरे ट्रायंगल में भी 30, 60 और 90 डिग्री होना चाहिए। बट सिर्फ इतना कह देने से कि भाई एक ट्रायंगल का तीनों एंगल 30, 60, 90 है, दूसरे का भी 30, 60, 90 है, तो कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ये जरूरी नहीं है कि वो कॉन्ग्रुएंट होगा ही होगा। उसके साथ देखना है कि दोनों के 30 डिग्री के सामने वाली साइड्स आपस में इक्वल हो, 60 डिग्री के सामने वाली साइड्स इक्वल हो, 90 डिग्री के सामने वाली, 90 डिग्री जब होता है तो ट्रायंगल राइट एंगल होता है, यानी उनके हाइपोटेनस भी आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल एंड करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल, देन वी कैन से दैट द ट्रायंगल्स आर सेड टू बी congruent. Both the triangles are said to be congruent. Is it clear? ट्रायंगल कब congruent होगा? जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के बारी बारी से किसी न किसी साइड के, पहला इसका उसके एक साइड से, दूसरा उसके दूसरे साइड से, तीसरा उसके तीसरे साइड से, और जो एंगल्स हैं दोनों ट्रायंगल में सेम मेजरमेंट के होने चाहिए कि अगर इसमें 30, 60, 90 है तो उसमें भी 30, 60, 90 ही होगा, ठीक है ना। वो भी करस्पॉन्डिंग, कहने का मतलब मान लो एक ट्रायंगल है, करस्पॉन्डिंग का मतलब क्या है, अब इसको समझने के लिए एक डायग्राम को आप देखिए। देखिए हमने अभी अभी 2 डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, एक ट्रायंगल PQR है और एक ट्रायंगल ABC, ठीक है। अब 2 डिफरेंट सिचुएशन में आपको बता रहा हूँ, ये है एक ही चीज़ लेकिन मैं अभी इसको 2 पार्ट में बाइफर्केट कर रहा हूँ। पहला कह रहा है कि जो ट्रायंगल्स है उनके साइड्स इक्वल हैं। कैसे? तो उसको इस हिस्से में देखिए कि ट्रायंगल ABC का जो AB है वो PQR के PQ के बराबर है, जो BC है वो QR के इक्वल है, और जो AC है वो PR के इक्वल है। ओके, तो देयर साइड्स आर करस्पॉन्डिंग, मतलब देयर साइड्स आर इक्वल। नाउ जब हम साइड्स इक्वल करेंगे तो व्हाट इज करस्पॉन्डिंग एंगल्स? AB इज इक्वल टू PQ
देन ए बी के सामने वाली एंगल सी और पी क्यू के सामने वाली एंगल आर को इक्वल होना चाहिए. तो डू यू थिंक दैट एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर? Yes, we find that angle C is equal to angle R. Again, since BC is equal to QR, तो BC के सामने है एंगल A और QR के सामने है एंगल P. Again, we find that angle A is equal to P. So here we say that angle A and P are corresponding angles and they are equal. Again, we have that AC is equal to PR. The angle opposite to AC is B. And angle opposite to PR is Q. Do you think that B is equal to Q? Yes, B equal to Q. So again here you find that corresponding angles are equal. In the same way, if the angles are given that angle A is equal to P, so what sides are opposite to these two angles? A के opposite BC और P के opposite QR. तो क्या BC और QR equal हैं? हाँ हैं. Angle B equal to Q. What sides are opposite to B and Q respectively? Side AC is opposite to B, side PR is opposite to Q. So AC is equal to PR, is it? Yes, AC is PR. And similarly, since C is equal to R and side opposite to them are AB and PQ and they are equal, so this is said to be corresponding. ठीक है ना? So whenever these two things happens, we said that the triangles are congruent. यहाँ हम कहेंगे कि ट्रायंगल ABC जो है, ट्रायंगल ABC is congruent to ट्रायंगल PQR. आपने क्लास 7 में कंग्रुएंसी पढ़ा है, हमें मालूम है, जस्ट रिकॉल इट. और सिंबॉलिकली हम इसको कहते हैं ABC is इक्वल टू का सिग्नेचर साइन और एक ऊपर ऐसे लगा देते हैं, तो इसको कहते हैं इज कंग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR. क्लियर है? आई थिंक इट शुड बी क्लियर. तो जब कभी भी हमें अच्छा अगर ये चीज दिया रहेगा तभी हम बता देंगे कि कौन से साइड किसके इक्वल है. इफ ABC इज कंग्रुएंट टू PQR, तो आप फर्स्ट सेकंड में क्या है साइड AB, तो इसके भी फर्स्ट सेकंड में PQ, तो AB मस्ट बी इक्वल टू PQ. इसका सेकंड थर्ड BC है, सेकंड थर्ड QR है, तो BC मस्ट बी इक्वल टू QR. फर्स्ट एंड थर्ड AC है, इसका फर्स्ट एंड थर्ड PR है, तो AC मस्ट बी इक्वल टू PR. सिमिलरली एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R. ऑर्डर में इसका पहला इसके पहले से, इसका दूसरा दूसरे से, तीसरा तीसरे से. क्लियर है? तो ये हुआ कंग्रुएंसी ऑफ टू ट्रायंगल्स. कब? कि when their corresponding sides are equal as well as their corresponding angles are equal, means the triangles are equiangular, we say that the triangles are said to be congruent. But question is, if we have to prove that these two particular triangles are congruent, तो क्या हमें उसके तीनों साइड और फिर तीनों एंगल बराबर दिखाने होंगे? यानी 6 चीज हमें इक्वल दिखाना पड़ेगा? ये एक क्वेश्चन है और एक बड़ा सा क्वेश्चन है. तो इस बड़े से क्वेश्चंस को सॉल्व किया गया कि नहीं, इसके लिए उन्होंने यहां पर फिर एक हेल्प लिया एक्सियम का, मतलब जिसका कोई प्रूफ नहीं था. ऐसे सारे कंडीशंस में जब भी दो ट्रायंगल कंग्रुएंट हुआ तो एक चीज सभी ने पाया कि कोई दो साइड एक ट्रायंगल का और उसके बीच का एंगल, अब बीच का एंगल का मतलब if you take two side AB and BC, then the common vertex is said to be angle B पर हुआ common. तो if any two sides of a triangle and the angle between them are equal to any two sides and included angle of the other triangle, then they found that both the triangles are congruent, but they have no proof. They had no proof about that, but they find years and years gone and they find that whenever one side is equal to one side, this side is equal to this side, and angle between them are also equal, then ओवरलैपिंग करने पे, कोइंसाइड करने पे दोनों ट्रायंगल एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाते हैं, मीन्स ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट थे. तो उन्होंने इस वेरी पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को कॉन्ग्रुएंसी का मेन एक्सियम्स मान लिया कि बस इतना कह देने से
कि केवल दो साइड उनके बीच का एंगल अगर किसी दूसरे ट्रायंगल के किसी भी दो साइड उसके बीच के एंगल के इक्वल हो तो हम दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट कहेंगे। क्लियर है? एंड दिस इज एक्सियम। तो क्या बताया हमने आपको कि whenever if two triangles are said to be मतलब if okay oh not चलें चल रहा है। if any two sides and included angle means angle between the two sides, included angle of a triangle are equal to any two sides and included angle of another triangle, कोई दूसरे ट्रायंगल का, then the two triangles are said to be congruent। और इस कॉन्ग्रुएंसी को हम लोग साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया या कंडीशन है ना, रूल, कॉन्ग्रुएंस रूल, शॉर्ट में SAS कॉन्ग्रुएंस रूल कहते हैं। और दिस रूल इज व्हाट? एन एक्सियम। It was found that in each and every case, whenever we find this, that both triangles are congruent, but we never have a proof. So it is taken as truth, and so it becomes axioms. Or Euclid's geometry, Euclid Baba क्या बोलते हैं? It's a postulate because it is used in geometry. But now we are saying it's an axiom. Before going to further, भाई अभी तो एक चीज हमने पढ़ा, दो साइड और एक एंगल, इंक्लूडेड एंगल भी, कोई भी एक एंगल नहीं, इंक्लूडेड एंगल। बट अगर हम ये कहते हैं कि ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR, तो उसके साथ ही आप इतना जरूर कह दो कि AB इक्वल टू PQ, BC इक्वल टू QR, AC इक्वल टू PR। इनके करस्पॉन्डिंग साइड पहला दूसरा दूसरा एंड फिर पहला तीसरा इक्वल होंगे। एंड एंगल A इक्वल टू एंगल P, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इक्वल टू एंगल R। दे आर कॉल्ड करस्पॉन्डिंग पार्ट्स of congruent triangles, and corresponding parts of congruent triangles are always equal. So whenever we find that triangles are congruent, then this, तो हम लोग एक शॉर्ट फॉर्म में यूज करते हैं CPCT। CPCT is the short form of corresponding parts of congruent triangles, and parts means either sides or angles or both. Sometimes हमें दो साइड और एक एंगल है तो बाकी का एक साइड और दो एंगल दिखाने पड़ेंगे, तीनों साइड भी दिया हो सकता है, क्योंकि कंग्रुएंसी में हमने क्या पढ़ा कि ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट इफ दे आर इक्विएंगुलर एज वेल एज देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, मीन्स ऑल द थ्री साइड्स आर इक्वल। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि केवल साइड्स भी इक्वल होने से तीनों हम कह देंगे कि ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कंग्रुएंट। ठीक है ना? केवल दो एंगल और एक उनके बीच का साइड भी इक्वल होने से हम कह देंगे। दीज आर द प्रॉपर्टीज वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट सम प्रॉपर्टी
and there have some proof. These properties has no proof, but when we are going to study about SSS और ASA और RHS और इसका एक पार्ट होगा AAS, these all properties can be proved with the help of this one, and other axioms. In order to prove these particular things, we have to use some another concept of the geometry, but to prove congruency we arrived at this very point, then we can say that triangles are, क्योंकि ये तो हम लोग जानते हैं कि ये होता है, माना गया है, मान लिया गया कि ये तो सच है, तो इस यहाँ तक पहुँच के ही हम कॉन्ग्रुएंसी दिखाएंगे। तो ये हुआ हमारा, इसको बताना था करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, CP/CT, ठीक है। उसके बाद हम लोग ये जो पहला क्राइटेरिया है, जो एक्सियम्स है, उस पर एक आध थ्योरम्स होगा, एक आध प्रॉपर्टीज होगी, उसको जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जो है एक जो थ्योरम्स है उसमें एक थ्योरम हमें एग्जाम में पूछे जा सकते हैं तो उसको करेंगे। फिर वी हैव few exercises, few more properties, and it is very important part of the your syllabus, congruency of the triangle, है ना। तो इसमें से जो ये पार्ट है इसका हम लोग को प्रूफ पढ़ना होगा, बाकी के केवल प्रॉपर्टीज जान लेने हैं, उसके प्रूफ जानने की ज़रूरत नहीं है। जान लो अच्छी बात है, बट इट कैन नॉट बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन, सो हम लोग इसका प्रूफ पढ़ेंगे, लेकिन बाद में, अभी नहीं। अभी हम इन सभी प्रॉपर्टीज़ को बारी बारी से जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट दे आर, एक्चुअली व्हाट दे आर। अगर हम RHS कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम ASA कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ, SSS कहते हैं तो इसका मतलब क्या हुआ। अभी फिलहाल हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो कौन सा पार्ट हमने पढ़ा अभी, साइड एंगल साइड, A से S कॉन्ग्रुएंसी। फिर अभी जैसा मैंने बताया, मैंने कहा कि अभी हम लोग कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में जान लेंगे। दूसरा जो कंडीशंस है इसमें, सेकेंड वन इज कॉल्ड एंगल साइड एंगल कॉन्ग्रुएंस रूल। नाउ ये जो आपका है इसका प्रूफ जानना है, लेकिन ये प्रूफ मैं अभी नहीं बता रहा हूँ। दिस पार्ट ऑफ द, इसको बताऊंगा बाद में, है ना। पहले हम लोग इसके जान लेंगे केवल कि क्या है ये। एज द सजेस्ट, इट इज डिनोटेड एज ASA, आसा, कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस भी कह सकते हो। क्या है इसमें कि इफ two triangles are said to be congruence to each other, or simply two triangles are congruent if two angles and included side, and वहाँ क्या था, two sides and included angle। अभी इसको भी समझा, included side of one triangle are equal to two angles and included side of the other। बड़ा सिंपल सा चीज़ है। क्या कह रहा है कि अगर हमारे पास दो ट्रायंगल्स हैं, सपोज हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं, दोनों का फिगर एक तरफ बना होना चाहिए, छोटा बड़ा नहीं, क्योंकि कॉन्ग्रुएंस है ना एक दूसरे को, ये थोड़ा बड़ा दिख गया। खैर फिर भी अगर मान लो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होने हैं इस कंडीशन से, तो क्या मिलेगा हमें, पहले क्या दिया रहेगा। अगेन वी आर गोइंग टू लेबल इट। दिया रहेगा कोई दो एंगल, मान लो इसका हमने दो एंगल ले लिया, A और B, और इसके भी दो एंगल ले लिए। A जो है P के इक्वल है और B जो है वो Q के इक्वल है। एंड टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड, जब हमने इन दोनों एंगल को लिया है तो इंक्लूडेड साइड ये हुआ,
दोनों एंड पे जो एंगल बना है उससे बना हुआ जो साइड है दैट इज कॉल्ड इंक्लूडेड साइड। तो व्हाट इज इंक्लूडेड साइड बिटवीन एंगल पी एंड क्यू? पी एंड क्यू के बीच में कौन सा साइड है? पी क्यू। तो इफ टू एंगल्स एंड इंक्लूडेड साइड्स आर इक्वल, then we say that triangle ABC is congruent to triangle PQR, and here property is ASA, not SAS. SAS में क्या था? A से S, है ना? क्लियर है? दिस इज द सेकेंड प्रॉपर्टी। आपको इसमें क्या जानना है? आपको इस किसी दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने के लिए अगर आपको दो एंगल, एक ट्रायंगल का उसके बीच का साइड दूसरे ट्रायंगल के किसी दो एंगल और उनके बीच के साइड का इक्वल होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो आप कह सकते हो कि ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अब क्वेश्चन यहाँ पर एक और उठेगा जो मैं अभी बाद में बताऊंगा आपको, कि इससे जानने से ये जो लिखने का जो क्राइटेरिया है, हाउ टू राइट इन नोटेशन, रैंडमली हम लोग नहीं लिख सकते कि ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू क्यू पी आर या पी क्यू आर या सी आर पी क्यू, कुछ भी नहीं। ये ऑर्डर एक इम्पॉर्टेंस रोल प्ले करता है। इफ ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, दैट मीन्स ए बी सी इज परपेंडिकुलर कॉन्ग्रुएंट टू पी क्यू आर, नॉट क्यू पी आर। आप कहोगे सर पी क्यू आर और क्यू पी आर या आर पी क्यू एक ही ट्रायंगल के तो नाम है, लेकिन कॉन्ग्रुएंसी चेंज हो जाएगा। ट्रायंगल सेम है, लेकिन जिस ऑर्डर में बोलेंगे, अगर हमने ए बी सी और पी क्यू आर को कॉन्ग्रुएंस दिखाया है तो ए बी के करस्पॉन्डिंग में पी क्यू ही होगा और ए बी पी क्यू के ही बराबर होगा। अगर यहाँ नाम में बदल दूँ, यहाँ लिख दूँ क्यू पी आर, तो ए बी के इक्वल हो जाएगा दूसरा कुछ, बी सी के इक्वल हो जाएगा कोई दूसरा, तो सारा कुछ उलट पुलट हो जाएगा। ठीक है ना? तो दिस इज द सेकेंड कंडीशन। अच्छा, इसी कंडीशन का कॉरोलरी है, बेस्ट है इसी पर। क्या है बेस्ट? कि ऐसा सपोज कर लो आपको दो एंगल मिल गया, ये और ये, इन दोनों के इक्वल, तो एक तीसरे के बारे में आप क्या कहोगे? ये भी तो इक्वल ही होना चाहिए, क्योंकि वी नो दैट द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। सपोज ये मिला हमें 60, ये मिला हमें 70, 60 के इक्वल ये 60, 70 के इक्वल ये 70, तो बचा हुआ जो तीसरा थर्ड एंगल है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस वन? इट शुड बी 50। तो ये भी तो, इधर भी तो 50 ही आना है। So whenever you find that two angles of a triangle are equal to the two angles of another triangle, certainly their third angle must be equal, and we are going to use this property, this value, third angle कैसे equal हो जाएगा? कई जगहों पर, सेवरल जगह पे, इस क्लास 9 में भी एज वेल एज इन क्लास 10 में भी, कि भाई दो एंगल इसका इक्वल, दो एंगल उसका इक्वल, तो तीसरा भी एंगल इक्वल होना ही होना है। इन दैट केस मान लो आपको कोई भी दो एंगल मिल गया, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ आपको, इसी सेम चीज़ में हमने दिया कि एंगल ए जो है वो पी के इक्वल है, एंगल बी जो है एंगल क्यू के इक्वल है। अब इंक्लूडेड साइड ना देकर बी सी इक्वल टू क्यू आर दे दिया, बी सी इक्वल टू क्यू आर दे दिया। देखिए, साइड यहाँ हमें होना चाहिए इस कंडीशन से ए बी और पी क्यू, लेकिन साइड कोई दे दिया दूसरा, तो क्या ये कॉन्ग्रुएंस होगा? तो यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ऑटोमेटिक जो तीसरा एंगल इनका है वो कौन सा, सी और आर, वो भी आपस में इक्वल हो जाएगा। अब उस समय जब आपस में इक्वल हो गया तो बी सी और क्यू आर, ये दो साइड अगर हमें दिया हुआ है, तो फिर इस कंडीशन से हम ट्रायंगल्स ये वाला लगा सकते हैं ना, ये वाली प्रॉपर्टी जो है ए एस ए आशा को लगा सकते हैं ना यहाँ पर। बट दिया क्या था? दो एंगल लगातार और उसके बाद वाले साइड। तो ऐसे केस में कॉरोलरी होता है ए ए एस, ए ए एस। इस पर भी ध्यान देने की जरूरत है, ऑर्डर में ही साइड लेंगे। अगर हमने ए बी और बी सी लिया है तो पी क्यू क्यू आर लेने, नहीं कि ए इक्वल टू पी, बी इक्वल टू क्यू और बी सी इक्वल टू पी आर, तब नहीं प्रूफ हो पाएगा। आप इसको चेक कर सकते हो जिस सोच के कि देखते हैं कि उस केस में होगा कि नहीं। क्या दिया? ए दिया पी के, बी दिया क्यू के, और इधर नीचे से ये बी सी लिया और उधर से पी आर ले लिया। देखिए, हमने ए बी के बाद बी सी ले लिया, ए बी सी,
तो उधर पी क्यू आर होना चाहिए, लेकिन हमने पी क्यू आर नहीं लेके क्यू पी आर कर दिया, सीक्वेंस को उलट दिया। तो क्या, अब देखिए हमारे पास तो C इक्वल टू आर होगा। अब बी सी B और C के बीच का है, तो B इक्वल क्यू है और C इक्वल आर है, तो क्यू आर इधर मिलना चाहिए था, पी आर मिला। इसलिए वी आर नॉट पोजिशन टू से दैट वेदर दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट और नॉट। इट मे बी कि बी सी जो पी आर के इक्वल है और क्यू आर के भी इक्वल अगर हो गया तब कॉन्ग्रुएंस हो सकता है, बट जो कंडीशंस दिया हुआ है उसके हिसाब से वी आर नॉट एबल टू से दैट दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दिस इज गिवन, दैट एंगल दिस, इसमें ए बी और बी के बाद बी सी लिया है, इसमें पी क्यू और पी क्यू के बाद क्यू आर ना लेके पी आर लिया, मतलब हमने क्यू पी आर इधर कर दिया, इधर ए बी सी कर दिया, तो कॉन्ग्रुएंट नहीं होगा। तो ये AAS यानी आस जो है वो क्या है, कॉरोलरी ऑफ एंगल साइड एंगल। ठीक है, एक लास्ट कॉन्ग्रुएंस कंडीशंस है, उसको भी देख लें हम लोग। आई होप कि आप समझ रहे। वैसे अभी तक जो हमने कंडीशन पढ़ा, आशा, आस और सास, SAS, ASA, उस पे आपके NCERT के 2 एक्सरसाइज सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना। हमारे पास जो एक्सरसाइज है वो 7.1 एंड 7.2 विद द हेल्प ऑफ व्हाट वी हैव स्टडीज टुडे वी कैन सॉल्व these two. So in the next part we are going to solve problems of exercise 7.1 as well as 7.2, and there are 8 and 16 questions in these two, and the last one is the property RHS. RHS. What is RHS? RHS. Actually, it is right angle, H for hypotenuse और S for side. Side means देखिए राइट एंगल, एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए, उसमें राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए। इसके लिए क्या होना चाहिए, राइट एंगल्ड ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल का एक एंगल 90 होना ही होना, उसमें एक हाइपोटेनस होना ही होना है। उसके बाद बचता है 2 साइड्स, बचता है 2 साइड ABC, ये दोनों को हम परपेंडिकुलर साइड कह रहे हैं। एक दूसरा ट्रायंगल भी लेंगे, राइट ट्रायंगल ही लेंगे, PQR, तो ये दोनों हो गए साइड्स, परपेंडिकुलर साइड। तो इसमें स्टेटमेंट ये कहता है कि इफ, कौन सा RHS, इफ इन 2 राइट एंगल्स, पहली बात राइट एंगल्स होना जरूरी है। इफ इन 2 राइट ट्रायंगल्स द hypotenuse of and one side, इन दोनों में से कोई एक, of a triangle, any triangle, of one triangle are equal to the hypotenuse and one side of the other triangle, then the two triangles are said to be congruent. Said to be congruent. मतलब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या कहा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है, द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल। तो ये साइड इस साइड की इक्वल, और इन दोनों में से कोई एक, मान लो हमने कहा AB इज इक्वल टू PQ, AB इक्वल टू PQ, ये साइड हो गया, और हाइपोटेनस AC इज इक्वल टू PR, और एक ऑलरेडी राइट एंगल तो है ही, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल है, एक राइट एंगल होगा ही कि एंगल B इक्वल टू एंगल Q, इसमें राइट ट्रायंगल का होना जरूरी है, और उसके सामने वाली साइड इक्वल हो, और बचे हुए 2 साइड जो उनके बचते हैं उनमें से कोई एक उस दूसरे के किसी एक से बराबर हो, देन वी से दैट ट्रायंगल ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल PQR। अगेन राइटिंग ABC इज ट्रायंगल टू PQR और QPR और RPQ, इट डिपेंड्स अपॉन द ऑर्डर ऑफ द congruency, is it?
and this is I am going to discuss in the next part. First, today we have learned only what are congruent figures. First, what are congruent figures? Figures are said to be, two figures are said to be congruent if they are of the same shape. Same shape means if one is line segment, then another is also line segment. If one is circle, then another should be circle. If one is triangle, then another should be triangle. If one is a square, then another should be a square. If one is rhombus, then another should be rhombus. If one is trapezium, then another should be trapezium, etc. In the next part, we focused on the congruency of triangles only. Congruency of triangles. तो ट्रायंगल्स हो गया, तो हमने जो पहला पार्ट है शेप तो हो गया कि दे आर ऑफ द सेम शेप. नहीं, व्हाट अबाउट सेम साइज? सिंस अ ट्रायंगल हैव 6 पार्ट्स, so two triangles are said to be congruent if their sides are equal and corresponding angles are equal. एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से अलग अलग अगर इक्वल हों और फिर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हमने बताया अभी कि करस्पॉन्डिंग कैसे करेंगे, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल हो, या अगर कोई कहता है कि देयर एंगल्स आर इक्वल, दे आर इक्विएंगुलर, देन करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल, देन ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. अब क्वेश्चन ये उठा कि क्या इन ऑर्डर टू प्रूव टू ट्रायंगल्स टू बी कॉन्ग्रुएंट वी एवरी टाइम ट्राई टू प्रूव द 3 साइड्स आर इक्वल एंड 3 एंगल्स आर इक्वल? नो. फॉर दैट आवर फोरफादर्स मैथमेटिशियन जो थे उन्होंने हमें एक एक्सियम दिया, साइड एंगल साइड का. साइड एंगल साइड का इसका कोई प्रूफ नहीं है कि इफ इन अ ट्रायंगल 2 साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल आर इक्वल टू 2 साइड्स ऑफ एन इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल, देन दीज 2 ट्रायंगल्स आर सेड टू बी कॉन्ग्रुएंट. फिर हमने आपको करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ द कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स बताया, उसका शॉर्ट फॉर्म सिंप्लिसिटी. फिर हमने कहा कि एक और, अब इसके बेस पे साइड एंगल साइड एक्सियम्स के बेस पे वी आर गोइंग टू प्रूव 3 मोर प्रॉपर्टीज. साइड साइड साइड, जब एक ट्रायंगल का तीनों साइड, अभी तो साइड 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 हमने पढ़ा ही नहीं. तीसरा प्रॉपर्टी है साइड साइड, उसको कल पढ़ लेंगे हम लोग अगले दिन. तो साइड 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 तीनों साइड, अगर एक ट्रायंगल का तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड के इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंस. 2 एंगल इंक्लूडेड साइड एंगल हो तो कॉन्ग्रुएंट. राइट ट्रायंगल में हाइपोटेनस और एक साइड इक्वल हो तो कॉन्ग्रुएंट. तो आज हम लोगों ने सिर्फ पढ़ा है प्रॉपर्टी, कल एक और प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, है ना. और प्रॉपर्टीज पढ़ने के बाद हम लोग एक्सरसाइजेस करेंगे, क्योंकि इसी कॉन्ग्रुएंसी में फिर लास्ट पार्ट जो है, लास्ट हिस्सा है वो इनइक्वलिटी का है, तो उसको हम लोग लास्ट में टेकअप करेंगे इनइक्वलिटी, और उसको हम लास्ट में ही बताएंगे. और अभी इस बीच में प्रूफ भी बता देंगे, जो ASA कॉन्ग्रुएंसी का उसका प्रूफ मैं बता दूंगा आपको. तो जितना आज पढ़ा बेसिक कंसेप्ट था, इसको आप अपने बुक से NCERT यू कैन डाउनलोड फ्रॉम NCERT वेबसाइट बुक. इफ़ यू हैव देन वेल एंड गुड. इफ़ यू हैव डोंट हैव and you are not going to purchase the book or you are not going to manage the book, then you can simply download from the NCERT website. It is downloadable. उसको आप डाउनलोड कर सकते हो. So thank you very much बेटा.